Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ कुमार विजय। कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग। Thank you, Amrish. Yes, let's begin with the headlines, friends. Domestic benchmark indices display positive momentum. Sensex climbs over 750 points. Nifty ends above 23,100. Real gross domestic product estimated to grow by 5.4% in second quarter of current financial year. India's 8 core sectors grow by 3.1% in October this year, and crude oil prices slip. Brent crude trades at $72.91. घरेलू शेयर बाजारों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। सेंसेक्स ने 750 अंकों से अधिक की छलांग लगाई। निफ्टी 23,100 अंकों के पार चला गया। मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 5.4% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई और देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों में इस वर्ष अक्टूबर के दौरान 3.1% की तेजी दिखाई दी और कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड $72.91 पर कारोबार कर रहा था। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लू चिप शेयरों में तेजी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांकों में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 759 अंक यानी 0.96% बढ़कर 79,803 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 217 अंक यानी 0.91% की बढ़त के साथ 24,131 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी बढ़त दर्ज की गई। मिड कैप सूचकांक में 0.31% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% से अधिक की तेजी दिखाई दी। All right, let's talk about the stocks in detail now. Well, domestic benchmark equity indices today displayed a positive momentum. Both the indices ended with gains of over 0.9%, supported by a rally in blue chip stocks. The 30-share BSE Sensex jumped 759 points or 0.96% to close at 79,803. And NSE Nifty 50 rose 217 points or 0.91% to settle at 24,131. The broader market at the Bombay Stock Exchange also logged gains. The mid-cap index ended 0.31% up and the small-cap index gained over 0.7%. In the Sensex index, 27 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Bharti Airtel surged 4.3%, Sun Pharma jumped over 2.6%, and Mahindra climbed over 2.3%. Conversely, in the top laggards, Power Grid shed over 1%, Nestle fell slightly by 0.07%, and SBI Bank was marginally down by 0.05%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 20 sectors ended in positive territory except Realty, which shed over 0.5%.
Among the top gainers, healthcare advanced over 2%, telecommunications gained over 1.5%, and utilities added nearly 1.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,347 companies advanced and 1,606 declined, while 97 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 66 companies hit their 52-week high, while 20 hit their 52-week low. So, Bijoyji, when we talk about the Sensex, often the response is the markets are volatile, but isn't it the nature of the markets to be a little volatile all the time? So, can we ever think of stable markets? We see that today the BSE Sensex rose and jumping by 759 points and settling at a good 79,803. You are very right that market by nature is volatile, but the question arises that some of the volatility we have adjusted and we have accepted it. So that is called tolerance level of it. So when we now volatility crosses that tolerance level, then only we call it is volatile. Like yesterday it was the way market had behaved, and now suddenly you look into that market today has behaved differently. This is what actually a volatility, where your direction of movement may not necessarily be effectively known well in advance. Then after that, of course, after happenings, we keep on finding the cause and we keep on looking into that why it has happened. But that doesn't give you any kind of assurance that you are able to really predict that what way tomorrow market will behave. So there is no certainty, and that is what a stochastic behavior of market has to be. लेकिन विजय जी, ऐसा कौन सा कारण है कि बार बार मार्केट ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है? और एक समय था जब हम 80 के पार लगातार बने हुए थे, अब 80,000 का आंकड़ा पार करना ही हमको मुश्किल दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। इसको दो तीन तरीके से देख सकते हैं। पहले था, अगर बहुत पुरानी बातें करेंगे तो मार्केट जो था वो इतना इंटीग्रेटेड नहीं था बाहर के मार्केट से, बाहर के हैपनिंग से। अब मार्केट ज्यादा इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ एक और भी है कि डोमेस्टिक बायर्स भी अच्छे खासे अब मार्केट में आ चुके हैं। दोनों रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों बायर हैं। तो अब क्या होता है कि दो तरीके के फैक्टर, एक एक्सटर्नल जिसको हम फॉरेन फैक्टर्स कहते हैं और एक डोमेस्टिक फैक्टर। जैसे कल की बात करें अगर, तो कल जैसे मार्केट क्रैश हुआ तो ये क्रैश जो था उसमें 3-4 फैक्टर एक साथ काम किया, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कल जो एफएनओ सेगमेंट का जो स्क्वायरिंग ऑफ पोजीशन था वो। सेकेंड जो फैक्टर है कि जो चाइना का जो स्टिमुलस है वो अभी देखिएगा आपको 2025 तक ये परेशान करता रहेगा, क्योंकि स्टिमुलस बहुत बड़ा पैकेज है। तो एक होता है अनाउंसमेंट इफेक्ट, एक होता है धीरे धीरे उसका कैस्केडिंग इफेक्ट। तीसरी बात होती है कि अगर वैल्यूएशन के एंगल से भी देखेंगे डोमेस्टिक में, तो वैल्यूएशन जो है कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो हायर वैल्यू पे हैं। अगर ओवरऑल मार्केट के भी प्राइस अर्निंग को देखेंगे 25 से ऊपर रन कर रहा है, जो एक तरह से कहिए कि रिसेंट पास्ट में अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो हाईएस्ट फिगर पे है। तो इन सबको अगर मिला के देखें, और कल की बात में कल कहीं कोई ऐसी कोई न्यूज नहीं थी जो न्यूज आपको एक बढ़ने का खुराक दे सके, तो उतना मूव हुआ। लेकिन ऐसा फिर आप उसी न्यूज को दूसरे तरीके से देखें कि ऐसा भी कुछ न्यूज नहीं था जो भारतीय बाजार को इतना नीचे ले जाए। तो आज उसने अपनी रिकवरी फिर दिखा दी कि हम नए मार्केट सेशन का एक तरह से कहिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक का शुरुआत हो चुका मार्केट में। तो इस तरीके से, क्योंकि जब एफएनओ एक्सपायरी खत्म हो जाता है तो एक नए मार्केट की शुरुआत हम मानते हैं, तो उस शुरुआत को आप अच्छे नोट पे देख सकते हैं। और यही एक इंडिकेटर है जो मैं मानता हूं, क्योंकि डॉ थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्राइस सब कुछ बोलता है। तो प्राइस अगर बोल रहा है, ये मूवमेंट बोल रहा है, तो ये अपने अंदर के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, जहां से मार्केट बार बार, आप जो इस 80,000 की बात कर रहे हैं, देखिए 79,000 पे जाता है और फिर वापस लौट रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट इसको मिला हुआ है, और वो फंडामेंटल सपोर्ट है। Vijayji, normally when FIIs pull out, the markets would kind of crash. But now we see that DIIs are investing heavily in the Indian markets. And are they kind of compensating for FIIs pulling out? And is that giving an edge of stability to the Indian markets? That's true. See, if you look into, that is what I was comparing little older time versus the new time. In older time, when FI used to pull out, market used to crash. Now market is not crashing, market is simply correcting.
The reason is, if you look in the near past, last month onward, if you see, it's more than $1 trillion has already been pulled from them. Yeah. You know, it's they are taking money out. But what is happening? Even Indian investors are. I'm not only talking about Indian institutional investor, rather even retail investors are also very much into the market. And see, another signal I'll give you from market itself, that you look into that IPOs are in the queue. Yes. So IPO generally come in the market where they are very sure that sufficient liquidity is available and market sentiment is bullish. Otherwise, IPO will not dare to come in the market. And the fact that we have an unprecedented number of demat accounts now open in the country. Never have so many accounts been opened in the past. And a slight shift of this millennium, or the millennials shifting from bank to the markets, also gives gives an impression that the Indian market is healthy. Right. That's true. और चलते हैं रुपए का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक डॉलर की कीमत 84 रुपए 49 पैसे पर बनी रही। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 105.94 पर दर्ज किया गया। विजय जी, हालांकि हम देख रहे हैं कि रुपए की कीमत में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रुपए की कीमत काफी ऊपर नीचे लगातार हमने देखा है होती रही है, और शायद इसी की वजह है, अगर हम देखें हमारा जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 22 नवंबर के हम अगर आंकड़े देखें जो रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं, उसके हिसाब से 1.31 अरब डॉलर की कमी आई है, और जबकि उससे पिछले वीक में 15 नवंबर को इसमें 17.76 अरब डॉलर की कमी आई थी। जबकि और अगर हम पीछे जाएं तो सितंबर में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी अच्छी स्थिति में था। तो कौन से ऐसे कारण है, क्या रुपए की जो कीमत में जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं उसकी वजह से हमारा भंडार लगातार नीचे आ रहा है? जैसे आप अभी देखेंगे एफआईज बाहर निकल रहे हैं, और यूएस मार्केट को अगर कंपेयर करें तो डिमांड जो डॉलर का है वो काफ़ी इंक्रीज कर गया है, और इसी डॉलर डिमांड को इंक्रीज करने के कारण ही ये जो देख रहे हैं हम लोग, जो रुपए का जो रेट है, ये फॉरेक्स रिजर्व को अगर देखें तो फॉरेक्स रिजर्व जो है करीब करीब आप मान के चलिए कि 50 बिलियन के आसपास का मूवमेंट हो चुका है टोटल। अगर सारे पीक जो ऑल टाइम हाई 704 के आसपास से अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे वर्सेस 656 657 है, तो करीब करीब मान के चलिए कि 50 बिलियन के आसपास का वो है। इसके पीछे 3 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला फैक्टर जो मैंने बताया कि यूएस इकोनॉमी का जो कारण है। दूसरा फैक्टर जो एफआई जो विड्रॉ कर रहे हैं। तीसरा हमारे कुछ जो इंपोर्ट पेमेंट्स भी जो ओवरड्यू होते हैं, तो इंपोर्ट पेमेंट के कारण भी डिमांड इंक्रीज करता है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे अदर करेंसी से, तो जो रुपया जितना कमजोर दिख रहा है, एक्चुअली कमजोर हुआ नहीं है इतना। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि जो रुपया धीरे धीरे अगर इस तरीके से हल्का हल्का कमजोर होता है, तो कहीं न कहीं हमारे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी को एक सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक आपको सपोर्ट देता है, एक मोटिवेशन देता है, और वो स्टिमुलस की तरह, ऑटोमेटिक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। तो इसको पॉजिटिव लिया जाए, क्योंकि भारत जो है अपनी तैयारी एक्सपोर्टर की तरह कर रहा है, चाहे डिफेंस हो, फार्मा हो, सबको देखेंगे तो उसमें एक ये सहायक सिद्ध हो रहा है। तो इसको थोड़े से अच्छे और खुश मिजाज होकर लेने की जरूरत है। आपने अभी कहा कि the rupee hasn't really fallen. Actually, over a last, let's say about a year or so, it hasn't moved beyond 83. It's hovered just between 83 and 84 rupees a dollar. Hovered between that is true. And another one. This more. is the bracket, not above, not down. But comparison is not only, see, basically if you have to look into really rupees is depreciating or not, that you can compare rupees versus dollar, then rupees versus euro, then rupees versus sterling, and if you find out that some other places rupees has appreciated rather than depreciating, which simply indicates that it is dollar which has appreciated a lot, not the rupees has depreciated. Right. So that's the way we used to view. Glass half
full or half empty. Yes. All right. और चलते हैं देश की जीडीपी का हाल जान लेते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 5.4% की दर से बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार इस तिमाही में वास्तविक सकल मूल्य संवर्धन की दर 5.6% की दर से बढ़ी है। दूसरी तिमाही में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में विकास दर फिर से बढ़कर 3.5% हो गई है। मंत्रालय के अनुसार इस तिमाही में वास्तविक जीडीपी 44 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की यह राशि 41,86,000 करोड़ रुपए थी। इस तरह जीडीपी में 5.4% की दर से वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल मूल्य संवर्धन जीवीए 40,58,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 38,42,000 करोड़ रुपए थी। इस तरह जीवीए में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई। विजय जी, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छी खबर आपने पिछले विश्लेषण को भी बहुत ही सकारात्मक नोट पर ख़त्म किया था। अब ये एक और अच्छी खबर है कि हमारी जीडीपी में और कृषि और जीवीए में दोनों में ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाँ, बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि क्या है और क्या होना चाहिए। अगर हम टारगेट रख रहे हैं कि वो टारगेट 2047 का टारगेट लीजिए या अभी इमीडिएट 2030 का टारगेट लीजिए, जैसे कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, तो प्रश्न सिर्फ ये उठता है कि ये स्पीड से कब बन पाएंगे, क्या इसको और एक्सेलरेट करने की और बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। तो कंपैरेटिव टू अभी जो सारा सिचुएशन चल रहा है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन मार्केट जो है वो 1%, वो यूरोपियन इकोनॉमी जो है 1% के ग्रोथ रेट पे हैं। दूसरे तीसरे भी सारे एडवांस इकोनॉमी जो है वो 3% से नीचे के ग्रोथ रेट पे हैं। और अगर उस स्थिति में हम अगर 5% या 6% या ऊपर से लेके चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वी आर इन ए बेटर पोजीशन। लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सेलरेट करने की जरूरत होगी, क्योंकि जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं वो इतने से नहीं मिल पाएगा उस निहित समय में, तो थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। Vijay ji, we often talk about GDP, but Amrish ji also talked about this in this report, GVA, gross value added. addition. What is for our common listeners, how do we interpret the significance of gross value added, GVA? Gross value addition. See, GDP, when we talk about it, is more related to production. Production of any time, it is meant for consumption also. Whereas the value addition, when we talk about it, is those productions which actually increase the capacity, increases the creativity. That is what value creation we talk about, how much value has been created. And gross basically means it's a total of that. And if we simply remove that all depreciations, it will become net one. All right. Thank you for that clarification. Let's move on. India's core sector's output growth increased by 3.1% in October this year on annual basis, showed the data released by Ministry of Commerce today. The growth of core sectors was 4.1% during April to October this fiscal. October marks the second consecutive month of rise in core sector growth, the 8 core industries which also represent India's infrastructure output. The production of coal, refinery products, steel, cement, electricity and fertilizers recorded positive growth in October. The coal production increased by 7.8%, refinery products advanced by 5.2%, fertilizers witnessed an uptick of 0.4%, steel production rose by 4.2%, cement sector output growth increased 3.3%, and electricity generation increased by 0.6% in October 2024 in comparison to the same month last year. Meanwhile, crude oil sector witnessed a fall of 4.8% and natural gas production declined by 1.2% for the same period. The combined index of 8 core industries measures the combined and individual performance of production of 8 core industries, which are cement, coal, crude oil, electricity, fertilizers, natural gas, refinery products and steel. The 8 core industries comprise
40.27% of the weight of items included in the Index of Industrial Production. Lots of statistics. Vijayji, how do you interpret this news? This is basically, if you look into most of the indicators has given a kind of a positive signal, barring that gas if you talk about, then which simply indicates that it is substantiating the GDP and GVA figure, and that is indicating that yes, the kind of momentum which is there, it will continue, because these are the lead indicators, and lead indicators are those which is actually giving you signal well in advance, which is talking about that yes, whether it will be, whether it is electricity, whether it is all other factors, you'll find out that it is going to take their economy in a very positive direction. Right. So when the demand goes up, it's a kind of a good sign. Good sign. All right. Yes. और चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का है और इसके लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य क्षेत्रों को शामिल कर इसका विस्तार किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में आज कहा कि इस योजना के विस्तार से महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट महिला केंद्रित होने से आगे जाकर अब महिला नेतृत्व वाला हो गया है। इससे आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने ड्रोन दीदी परियोजना का उल्लेख किया, जिससे स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी ताकि प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एक अन्य खबर में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने आज कहा कि कपड़ा उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण तेजी आई है। उन्होंने बताया कि सरकार की समर्थ योजना के अंतर्गत 6 लाख महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना से कपड़ा उद्योग में रोजगार को बढ़ावा देने और कौशल विकास में मदद मिली है। विजय जी, आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण को लेकर जितना फोकस है भारत सरकार का और तमाम योजनाएं इसको केंद्र में रखकर ही बनाई गई हैं, खासतौर से अगर हम जिक्र करें किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, इसमें किस तरह के जो लाभ है वो महिलाओं को मिल रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड में जैसे सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि मत्स्य पालन और जो दूसरे तीसरे जो हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाहर थे उनको इंक्लूड कर लिया गया है, तो इससे एक दायरा बड़ा हो गया है। दूसरा, महिला को इंक्लूड करने से होता क्या है कि जो उपेक्षित हैं, तो ये जो है ना, जैसे हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते रहे हैं, सोशल इंक्लूजन की बात करते रहे हैं, उसी तरह से जेंडर इंक्लूजन की भी बात होती है। और अगर उनका मुख्य धारा में अगर प्रोडक्शन की जो बात होती है उसमें अगर भागीदारी बन जाती है, तो कह सकते हैं आप कि हमारे जो प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, प्रोड्यूसिंग हैंड जो कह सकते हैं, वो काफी बढ़ जाता है। और ये हर क्षेत्र में हो रहा है। और अगर रूरल इलाके में आके सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह भी आप देखेंगे, जो माने स्व सहायता जो है, वो समूह है, वो समूह में भी महिलाओं का जो समूह है वो ज्यादा सफल रहा है पुरुषों के समूह की तुलना में। पुरुष की तुलना में तो ये देखा गया कि वो लोग तो या तो छोड़ दिए हैं या किसी तरह की धोखाधड़ी में लग गए हैं, लेकिन महिलाओं का समूह बहुत अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ा है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो शुरू किए थे, आज बहुत बड़ा उद्योग के रूप में भी स्थापित हो चुका है। तो ये प्रशंसनीय ही नहीं, बहुत अति आवश्यक भी है, प्रशंसनीय भी है। और पूरा विश्वास है कि पार्लियामेंट में जो 33% रिजर्वेशन से लेके इस तरह की योजनाओं को पूरे देश में ये एक नया बल मिलेगा और सम्मान के साथ साथ भागीदारी भी पूरी रूप से मिलेगी। Right. You talked about cooperatives. We have a similar story. Deputy Prime Minister of Fiji, Manoa Kamikamika, today met External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in Delhi. Dr. Jaishankar expressed happiness to hear Mr. Kamikamika's positive impressions of cooperatives and other development programs in India. They discussed the potential of organic farming, technology applications, and digital tools. Dr. Jaishankar said he valued Mr. Kamikamika's support for taking the bilateral ties forward. Bijoy ji, we had recently the International Cooperative Alliance, first time being held in India.
interestingly, 60% of workforce in the cooperative sector is of women, constitutes of women, and through the self-help groups, as you just mentioned. We also have an additional, the government has put GEM facility, GEM portal in the cooperative sector. Could you throw some light, or an overview of the Indian cooperative sector? We've come a long way since the dairies Yes, now. dairy always the moment it comes cooperative success in the form, it's Amul is the first name appear in that. Yes. But a number of stories are there in India. What is the best part which has been there, the 25th of this November, which has been there? I think it is a globalization of our philosophy. Not only globalization, it is a global integration is there. And that's why you are reading, maybe country size is not important. Important is how participation and partnering is associated at the cooperative level. And I'm sure various aspects has been there, and I think it is somewhere around 7 points had been set. And if you look into 7 points, it was 14 points effectively. And the way government is taking it, this is going to be a new mileage, new, level of the integration, global integration of our economy. Well, we have 8 lakh cooperative societies. Yes, at least. yes. And United Nations, Mishji has declared next year, as you know, as the year of International Year of Cooperative Society. So that also. So the United Nations has made it for next year. We have started journey, and we have started making a meeting of that level in the November itself, in this year itself. Exactly. Yes. और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। बढ़त दर्ज करने वाले शेयर बाजारों में चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.9%, हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.2% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.05% की तेजी दिखाई दी। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में लगभग 2% और जापान के निकेई में 0.37% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों ने भी आज अच्छा प्रदर्शन किया। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.37%, जर्मनी के डेक्स में 0.3% और लंदन के फुर्सी में 0.06% की तेजी चल रही थी। विजय जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? इसमें जो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट अभी ऊपर की तरफ है, लेकिन कोरिया थोड़ा नीचे की तरफ गया है। बैंक ऑफ कोरिया हैज कट देयर रेट, तो बेंचमार्क रेट हैज बीन कट, एंड जैसे आप रेट कट होता है तो थोड़ा सा जो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, तो वो क्या होता है, वहां से मूव करते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ दैट इफेक्ट विच हैज, आई एम ट्राइंग टू रिलेट कि हाँ ये दोनों का कनेक्ट है और उस कनेक्ट के बेसिस पे है। अदरवाइज एशियन मार्केट के पास अभी एक गुड न्यूज है, इसलिए दे कीप ऑन मूविंग, वारिंग दैट वार पॉइंट। Well, India has potpourri of festivals, but US has Father's Day, Mother's Day, and these man-made festivals thrown in because they're a young culture. Yesterday was Thanksgiving holiday, so the US markets were shut, so we have no news on that. Moving on to oil. Oil prices slipped today. Brent crude was trading 0.5% down at $72.91 per barrel. And WTI crude had lost 0.1% to trade at $68.65 per barrel, according to latest reports. And silver और gold का हाल बताइए हमें। जी सराफा बाजार का हाल देखते हैं। सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.74% बढ़कर 76,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.43% बढ़कर 89,790 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.77% बढ़कर 76,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.5% बढ़कर 89,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। विजय जी, कोई संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहेंगे सोने के मूल्यों पर? अभी सोने में दोनों तरीके से सोने में
जो सीजन है भी शादियों का, जी। और साथ ही साथ जो मार्केट में मूवमेंट होता है, मार्केट का नेगेटिव और इधर का पॉजिटिव दोनों मिल के बराबर काम जी। करता रहता है। और अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विजय जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Big fat Indian weddings wait for the gold news. All right, before we close, friends, as a reminder of the headlines, domestic benchmark indices display positive momentum. Sensex climbs over 750 points. Nifty ends above 24,100. Real gross domestic product estimated to grow by 5.4% in second quarter of current financial year. India's 8 core sectors grow by 3.1% in October this year, and crude oil prices slip. Brent crude trades at $72.91. On that note, it's time for me, Lalima Aneja Dang, and my co-host Amrish Saxena to sign off. Namaskar. नमस्कार।